Hello kids, today we are going to learn the poem Strange Talk from class 2nd NCERT English. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. A duck lived by the waterside, and little did he laugh, but when we asked, how do you do? He only said quack quack quack. तो एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग कहाँ रहता है? एक लॉग के नीचे। लॉग मीन्स जो लकड़ी का रफ पीस होता है। जब हम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं वो क्या बोलता है? क्रॉक क्रॉक क्रॉक। ऐसे ही डक कहाँ रहती है? वाटर साइड। और उसे जब हम पूछते हैं हाउ डू यू डू, तब वो क्या बोलता है? क्वैक क्वैक क्वैक। तो देखिए आपको पिक्चर में डक दिखाई दे रही है। A duck lived by the waterside, and little did he laugh, but when we asked, how do you do? He only said, quack quack quack. तो जैसे आपको यहाँ पे डक दिखाई दे रही है और आपको ग्रीन कलर का फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है। A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wee wee wee. तो लिटिल पिग कहाँ रहता है? स्टे में। और जब हम उसको डिनर के लिए पूछते हैं तो वो क्या बोलता है? वी वी वी। इट मीन्स पिग की साउंड क्या है? वी वी वी। 3 pups live in a kennel and love to make a roar, and when they meet, may we go out, they said bow wow bow wow. तो पपीज कहाँ रहते हैं? केनल में। देखो कितने अच्छे से रो बना रहे हैं, एक लाइन में तीनों खड़े हैं। और जब हम उससे पूछते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हो तो वो क्या बोलते हैं? bow wow bow wow. इट मीन्स पिग स्टे में रहते हैं और उनका साउंड होता है वी वी वी। और पपीज कहाँ रहते हैं? केनल में, और उनका साउंड होता है बाउ वाउ वाउ। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, वुडंट इट मेक अ नॉइज? तो नैरेटर कहता है कि अगर ये सारे एनिमल्स एक साथ ही बातें करने लगे, जैसे हम लोग करते हैं, है ना, आप क्लास में बच्चे सभी करते हैं ना, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, इसी तरह से अगर वो सारे ही एट अ टाइम बात करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाएगा ना। समरी ऑफ द पोएम। द पोएम स्ट्रेंज टॉक बाय L.E. Yeats comprises 20 short lines. The narrator recreates the poem in the form of a story. He says that there was a frog who used to live under a log, a duck who lived by waterside, a pig who lived in a sty, and 3 pups who live in a kennel. The poem imparts information to kids about animals and their habitat and their sounds. In the concluding lines of the poem, the narrator wonders if animals spoke as much as the kids do, and if they did so at once, wouldn't it create a lot of noise? Now, new words. Instead, INSTEAD, instead. LACK, lack. STY, sty. KENNEL, kennel. ROW, row. MEANT, mint. Instead means in place of. Example sentences: I love singing instead of dancing. Talk to your teacher instead of sutapa. Second word is lack. Lack means not having enough of something. Example sentences: she has lack of confidence. I am lack of tools to mend this car. Third one is sty, place where pigs stay. Example sentences: 3 pigs were coming out of the sty.
The sky was very dirty. Now the next word, kennel. Kennel means a small shelter for dog. Example sentences. There was a black shaggy dog in the kennel. The dog was eating his food in the kennel. Next word is row. Row means straight lines of something. Example sentences. Please stand in a row. I sat in the front row of the theater. Next word is meant. Meant means to convey or tell something. Example sentences. She did not mean to hurt you. I mean to compliment her work. Now, reading is fun. Are these sentences true or false? First one is a little green frog said quack quack. तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो लिटिल ग्रीन फ्रॉग क्या बोलता है? क्वैक क्वैक बोलता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आपको बताइए फ्रॉग की साउंड कैसे होती है? क्रोक क्रोक क्रोक. तो इट मीन्स ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट वन इज अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो. क्या पिग्स को रो बनाना अच्छा लगता है? तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक. तो डक की साउंड क्रॉक क्रॉक होती है? नहीं होती. इट मीन्स ये क्या है? फॉल्स सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ पिग क्राइड अलाउड वी वी वी. पिग की साउंड होती है वी वी वी. तो ये सेंटेंस ट्रू है. तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? ट्रू. तो इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस लिखने हैं और उनके आगे आपको आंसर में बताना है कि आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. नाउ लेट अस टॉक. सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव. डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? है ना, सीमा बहुत बातें करती है तो उसका ब्रदर जो है वो उसे कहता है कि यू आर वेरी टॉकेटिव. व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास. क्या आप भी ऐसी बातें करते हो जब आपकी मैम आपकी क्लास में पढ़ा रही होती है? ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में आप बातें करते हो क्या? व्हाइल शी इज ईटिंग. खाना खाते टाइम भी आप सीमा बातें करती है क्या? व्हेन मदर आस्क्ड हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल. जब मम्मी उससे पूछती हैं कि स्कूल में क्या हुआ आज, तब वो बातें करती है क्या? तो आपको ये आंसर येस और नो में देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास सीमा शुड टॉक. हम बात करनी चाहिए सीमा को? नहीं. तो आंसर क्या आएगा? नो. ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में बातें करनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें खेलना चाहिए. तो आंसर क्या आएगा? नो. व्हाइल शी इज ईटिंग. खाना खाते टाइम बातें करना चाहिए सीमा को? नहीं, खाना खाते टाइम बातें करने से गले में फंस सकता है. तो इसी तरह से आपको यस और नो आंसर्स आपको लिखने हैं. जैसे यहाँ पे देखिए आंसर्स लिखे हुए हैं. एग्जाम्पल है नो सीमा शुड नॉट टॉक व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास. तो उसको बातें नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? ऑन द प्लेग्राउंड. यस सीमा शुड टॉक ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में खेलते खेलते वो बात कर सकती है. नेक्स्ट है व्हाइल शी इज ईटिंग. क्या वो खाना खाते टाइम बात करना चाहिए? नो सीमा शुड नॉट टॉक व्हाइल शी इज ईटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल. जब मम्मी उसको स्कूल में क्या हुआ है पूछते तब उसको बात करनी चाहिए क्या? तो यस शी शुड टॉक. नाउ लेट अस राइट. कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन. तो ये हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ योर नेम. यहाँ पे आपको व्हाट यूज़ करना है. हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन डू यू प्ले, वेयर डू यू लिव. तो ये आंसर्स आपको लिखने हैं. नाउ टिक द करेक्ट वर्ड. इसमें आपको स्पेलिंग जो करेक्ट है उसको टिक लगाना है. शूट करेक्ट है या शाउट करेक्ट है, कौन सा वर्ड करेक्ट है उसको आपको क्या करना है? टिक लगाना है. डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर और वाटर. तो वाटर इज राइट आंसर. ही टायर्ड और ट्राई टू क्लाइम द ट्री. तो आंसर है राइट. विल यू प्लीज और प्लीज हेल्प मी. तो आंसर है प्लीज. आई कैन SEEC और SEAC with my eyes.
तो आई से हम देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे SEEC। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड पे टिक लगाना है। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ऐसी एक्टिविटी हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो इज, आर। तो कोई भी सेंटेंस आप इसको इज वर्ड यूज करके बना सकते हो। जैसे दिस इज अ ट्री, दिस इज अ टेबल, देयर आर मेनी ट्रीज। इस तरह से आप इज और आर यूज करके सेंटेंसेस अपने मन से भी आप बना सकते हो। हैव, हैज, हैड। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, देखिए। इज यूज करके द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज डॉली। आर यूज करके देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। हैव यूज करके आई हैव 2 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर। हैज यूज करके टॉम हैज अ न्यू टॉय बस। हैड यूज करके वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस है। तो आपको ट्राई करना है कि खुद आप ये सेंटेंसेस बनाएं। वी शुड ट्राई योरसेल्फ, यू शुड ट्राई योरसेल्फ, ओके। एंड राइट डाउन दिस sentences in your English copy. Now write 5 lines on my pet. आपको पेट एनिमल पे 5 लाइन्स लिखनी है। जो भी आपका फेवरेट पेट एनिमल है आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आई हैव अ पेट कैट, हर नेम इज किटी, शी इज वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, शी प्लेज विथ मी व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एवरी डे, आई लव माई पेट किटी वेरी मच। तो यहाँ पे कैट के बारे में मैंने 5 लाइन्स लिखी है। आपका जो भी फेवरेट एनिमल होगा, पेट एनिमल, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। तो याद रखें, पेट एनिमल के बारे में लिखना है। तो सभी बच्चे पेट एनिमल के बारे में ही 5 लाइन्स लिखेंगे और उसकी ड्राइंग भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आप पिक्चर भी साइड में पेस्ट कर सकते हो, ओके। नाउ लेट अस एंजॉय दिस पोएम, द वाइज ओल्ड आउल। तो आउल देखो आपको दिखाई दे रहा है। आउल के बारे में ये पोएम है। तो इसको हम सभी बच्चे मिलकर गाएंगे, ओके। A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? Again, repeat it again. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? तो सभी बच्चों को ये पोएम लर्न करनी है और ये आउल की ड्राइंग भी आप लोगों को ड्रॉ करनी है। नाउ पिक्चर स्टोरी, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टॉइस। तो इन पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करके स्टोरी बनानी है। नाउ लेट अस कॉपी एंड राइट। कॉपी ईच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे रेड बॉक्स को यूज करके आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। इज द मैन टॉल और शॉर्ट? बताइए कि मैन टॉल है या शॉर्ट है। तो आंसर है ही इज टॉल। तो रेड बॉक्सेस में आंसर्स दिए हुए हैं, आपको सही आंसर उसमें से चूज करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन टॉल और शॉर्ट? तो जो वुमन है वो टॉल है या शॉर्ट है? शॉर्ट है। तो क्या आएगा वहाँ पे, शी इज शॉर्ट। नाउ अबाउट द एलिफेंट, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल? एलिफेंट बिग है या स्मॉल है? तो आपको दिखाई दे रहा है एलिफेंट बिग है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउस बिग और स्मॉल? माउस स्मॉल है या बिग है? आंसर इज इट इज स्मॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द ट्री ग्रीन और रेड? ग्रीन है या रेड है? तो ट्री इट इज ग्रीन। एंड व्हाट अबाउट हाउस? इज द हाउस ग्रीन और रेड? इट इज रेड।
So you have to complete all these question answers. I hope you understand this poem. Bye bye. Thanks for watching.